Hello and welcome to CSN Academy. And in this particular session, I am going to cover the past year question of CS Executive Module 2 EBCL Part B, that is Competition Act. You all know I have started with the PYQ series और इस PYQ series के अंदर ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स तो मैं अपने रेगुलर क्लासेस में पढ़ाता ही हूँ, बट यहाँ पे आप लोगों को अप्रोच डेवलप करवा सकूँ दैट अ पर्टिकुलर क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था उसको आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो जब वो क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट में पूछा जाए। और दूसरा, अगर उस क्वेश्चन को सपोज कोई क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, वो आपके अटेम्प्ट में 5 मार्क्स का आया, या आपके अटेम्प्ट में 5 मार्क्स का मतलब पास्ट एग्जाम में 5 मार्क्स का था, आपके अटेम्प्ट में 3 मार्क्स का है, तो आप उसको कैसे अटेम्प्ट करोगे, क्या चीज़ें लिखनी है, क्या चीज़ें नहीं लिखनी। सो लॉट ऑफ थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर हियर इन दिस पास्ट ईयर क्वेश्चन सीरीज। मेरा पहला लेक्चर सिक्योरिटी लॉ कैपिटल मार्केट के लिए था। This is the first lecture for the economic, business and commercial law, and in this video we are covering, like I mentioned, Competition Act Part B for the December 2021 attempt. My name is CS Anand Kankani and I am a company secretary from Mumbai. I've also done my post graduation in securities law, and it's been 10 years since I'm into the industry as well as into the teaching. So let's get started with the current paper. So आपको पता है कि जो Competition Act है उसका पार्ट 2 जो है बेसिकली इसका फॉर्मेट कैसा रहता है। You have two questions. One is question number 3, another is question number 4. Question number 3 में आपको 5 सब पार्ट्स मिलेंगे which is for 3 marks each. So basically question number 3 का वेटेज होता है 15 marks, and then you are going to get question number 4 जिसमें 2 सब पार्ट्स होंगे 5 marks each और इसका वेटेज होगा 10 marks, and that's how you have 25 marks का portion for Competition Act. So let's get started with each and every questions. फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास आया है, व्हाट इज अ कार्टेल। रिमेंबर दिस इज अ 3 mark क्वेश्चन विच दे हैव आस्क्ड। नाउ आई विल टेल यू दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो कम फॉर 5 marks, एंड आने वाले स्लाइड्स में मैंने आंसर्स ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है कि अगर ये क्वेश्चन 5 marks के लिए आए तो आपको क्या लिखना है। नाउ कार्टेल, यू नो दैट इट इज basically a association or an agreement between the producers, sellers, distributors, service providers, right? उन सब के बीच में agreement होता है, and this is by default a anti competitive agreement, right? अब आप देखो यहाँ पर आपको आंसर कैसे करना है। So cartel is what? It is an association. So step by step I have written all the answers so that आपको याद रखने में भी easy हो जाए और concepts भी brush up आपका आराम से हो जाए। So cartel is what? आपको यहाँ पे बताना है cartel is the association, but association किसके बीच में? सेलर्स, प्रोड्यूसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ट्रेडर्स और सर्विस प्रोवाइडर। नाउ ये एसोसिएशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? इन एसोसिएशन का ऑब्जेक्टिव ये होता है दैट दे ट्राई टू लिमिट or control, or at least they attempt to control what sellers are going to limit, control or attempt to control the selling price. Producers will do this for the production, distributors would do this for the distribution, traders would do this for the trade of goods, and service providers would do the same thing for the provision of the services. Now there are different types of cartel. You have import cartel, export cartel and the international cartel. Now import cartel and international cartel, it is basically CCI can have the jurisdiction. Import cartel is when you form a cartel for importing the goods into the country. International cartel, which have an impact not just in one country but in multiple countries. Export cartel is basically when you are selling the goods to outside India, outside the territory, and CCI का इसमें jurisdiction नहीं होता। CCI का jurisdiction आपको international cartel और import cartel में मिलेगा, because that may have a appreciable adverse effect on the competition within the relevant market in India. Export cartel में ऐसा नहीं होता। Now why cartel is bad? Because cartel is presumed to have an appreciable adverse effect on the competition in the relevant market in India, and it also causes injury to the consumers. Now if this question is for 3 marks, तो जितना मैंने ब्लू कलर में लिखा है आप सिर्फ वहीं तक अपने आंसर को करके आओगे। इफ द सेम क्वेश्चन दे आस्क इट फॉर 5 marks, तो आपको क्या एडिशन करना है? You just write what are the conditions which are conducive to cartelization. ऐसे क्या फुट पॉइंट्स है, ऐसे क्या फैक्टर्स आपको लगते हैं जिससे कार्टेल होने के चांसेस है? तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, कुछ ही लोग आपके पास वहाँ पर सेलर्स है, कुछ ही लोग प्रोड्यूसर्स है, तो ऐसा हो सकता है। जिस इंडस्ट्री में आप हो वहाँ पर एंट्री एग्जिट का स्ट्रॉन्ग बैरियर है, कंज्यूमर्स का हाई डिपेंडेंसी है, देन देर इज होमोजेनिटी ऑफ द प्रोडक्ट, सब लोग एक जैसे से ही प्रोडक्ट्स को वहाँ पर बेच रहे, तो अगेन कार्टेल बनने के चांसेस है। और अगर एक्सेस कैपेसिटी है तो, because when there is excess capacity, you know, supply would increase, the demand would be less, the price would come down. So what they do, they form a cartel and they try to
बेसिकली क्रिएट अ आर्टिफिशियल डिमांड, राइट, आर्टिफिशियल सरप्लस डिमांड, क्योंकि स्केर्सिटी कर देंगे वो प्रोडक्शन का, गुड्स का, एंड इससे प्राइस अप होने लगेगा। तो कार्टेल इसीलिए बोलते हैं इज गोइंग टू हैव एन अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन द कंपटीशन। रिमेंबर दिस टर्म AAEC, राइट, एंड इट कॉजेज इंजरी टू द कंज्यूमर ऑल्सो। एग्जाम में ध्यान रखना, आपको यहाँ पर शॉर्टकट नहीं लिखना है AAEC। Next you have what do you understand by the anti-competitive agreements. Now this is also from section number 3 of the Competition Act. So आपको ध्यान रखना है, सेक्शन 3 is for the anti-competitive agreement, सेक्शन 4 is for abuse of dominant position and सेक्शन 5 is for the combination. तो ये तीन सेक्शंस तो बाय डिफॉल्ट आप याद रख लेना। तो यहाँ पर जैसे बताया हुआ है दैट व्हाट यू मीन बाय एंटी-कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स। तो एंटी-कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स में क्या होगा, देयर इज गोइंग टू बी एन अग्रीमेंट। नाउ दिस अग्रीमेंट मे बी enforceable by law or it may not be intended to be enforceable by law. अग्रीमेंट के डेफिनेशन को आप चेक कर लेना। सिंस इट्स अ 3 मार्क क्वेश्चन तो मैंने अग्रीमेंट को डिफाइन नहीं किया। अगर यही 5 मार्क का क्वेश्चन हो तो आप अग्रीमेंट को भी यहाँ पर डिफाइन करोगे और शॉर्ट में आप बताओगे वेदर दिस अग्रीमेंट, बेसिकली दिस अग्रीमेंट इज व्हाट, वेदर इंटेंडेड टू बी एनफोर्सिएबल और नॉट इंटेंडेड टू बी एनफोर्सिएबल बाय द पार्टीज हु एंटर इनटू द this agreement, and this can be in writing, this can be oral, this can be understanding, right? तो यहाँ पर अग्रीमेंट किसके बीच में होगा, द अग्रीमेंट वुड बी बिटवीन द एंटरप्राइज और एसोसिएशन ऑफ एंटरप्राइज, पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अब ये अग्रीमेंट किसके लिए होगा, ये अग्रीमेंट होगा अगेन फॉर द प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, एक्विजिशन और कंट्रोल ऑफ व्हाट, ऑफ गुड्स एंड ऑल्सो फॉर द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। अब ये एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट को एंटी कॉम्पिटिटिव क्यों बोलते हैं, व्हाट इज रॉन्ग, यहाँ पे क्या गड़बड़ है। Here it is going to impact, right, or is likely to cause or is likely to put an impact on the relevant market in India, appreciable adverse effect on the competition within the relevant market in India। इसीलिए मैंने आपको AAEC काफी अच्छे से याद करने को बोला था, ये टर्मिनोलॉजी को, बिकॉज थ्रू आउट आपको कॉम्पिटिशन एक्ट में ये टर्म देखने को मिलेगा। तो डू राइट इन योर आंसर appreciable adverse effect on the competition within the relevant market in India। फिर आप देखिए दो तरह के एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स होते हैं सेक्शन 3 के अंदर ही। सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 इट टॉक्स अबाउट द हॉरिजॉन्टल एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट। सेक्शन 3 सबसेक्शन 4 इट डील्स विद द वर्टिकल एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट। नाउ हॉरिजॉन्टल एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट होगा बिटवीन, व्हेन दिस अग्रीमेंट इज बिटवीन द कॉम्पिटिटर्स और द पर्सन हु आर सेलिंग सिमिलर गुड्स। वर्टिकल के अंदर क्या रहेगा, दे आर इन द सेम सप्लाई चेन, राइट, बट एट द डिफरेंट लेवल्स। तो आपको अगर ध्यान हो तो मैंने रबर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंड ऑटोमोबाइल कंपनी बताया था ये, और ये अगर दो टायर कंपनीज के बीच में हो जाए तो ये हॉरिजॉन्टल। नाउ एंटरिंग इनटू द एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट इज व्हाट, इट इज prohibited under section 3 subsection 1 and section 3 subsection 2 it says that if any anti competitive agreements are found where the parties have entered into, that agreement is going to be void। Some of the anti competitive agreements are, जो यहाँ पर हम बात करते हैं, बिड रिगिंग है, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, रिफ्यूजल टू डील। दिस कैन बी बोथ योर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। जैसे बिड रिगिंग है ये आपका हॉरिजॉन्टल है, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, रिफ्यूजल टू डील ये आपके क्या होगा है, वर्टिकल। अब अगर आप रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस को इंपोज करते हो टू प्रोटेक्ट योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जैसे कि ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, डिजाइन एक्ट, इन सब के अंदर, देन दोस रेस्ट्रिक्शंस आर नॉट टू बी कॉल्ड एज एंटी कॉम्पिटिटिव इन नेचर। सो ये वैसे 3 मार्क का क्वेश्चन था, बट इसको मैंने काफी डिटेल में आपको बता दिया। इनकेस अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है तो आप इतना कंटेंट वहां पे लिख सकते हो। Then you have the question of combinations. So like I again said, section 3, section 4, section 5. So this is combination under section 5. Combination के अंदर क्या होता है? Combination is acquisition of, right? Acquisition of what? Acquisition of control, right? There can be acquisition of shares, acquisition of voting rights, or there can be some acquisition of the assets. Now this will be by any person over enterprise, राइट, एनी पर्सन ओवर द एंटरप्राइज। और इसके बाद क्या होगा, आफ्टर द एक्विजिशन, राइट, या आफ्टर द मर्जर एंड अमेलगमेशन, ये लोग जो पार्टीज यहाँ पे है, द पर्सन एंड द एंटरप्राइज, ये लोग जो पार्टीज टू द कॉम्बिनेशन है, इनका जो लिमिट है वो एक्सीड कर जाता है, ये थ्रेशोल्ड को एक्सीड कर जाता है, विच इज सेट इन द कॉम्पिटिशन एक्ट, देन इन दैट केस वी से दिस इज अ कॉम्बिनेशन। ध्यान रखना, सिर्फ मर्जर एंड अमेलगमेशन को ही कॉम्बिनेशन नहीं बोलते। मर्जर एंड अमेलगमेशन डेफिनेटली कॉम्बिनेशन है, बट मर्जर और अमेलगमेशन अगर नहीं हो रहा, बट एक्विजिशन हो रहा है किसका, कंट्रोल, शेयर और वोटिंग राइट्स और एसेट्स का, देन इन दैट केस इट कैन ऑल्सो फॉर्म अ कॉम्बिनेशन। आपको दो चीज यहाँ पर देखना होगा, थ्रेशोल्ड्स प्लस दिस एक्विजिशन ऑफ शेयर, कंट्रोल, वोटिंग राइट्स और द एसेट्स, एंड दीज पार्टीज आर एंगेज्ड इन द कॉम्पीटिंग बिजनेस। अब आप देखिए, ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट आपको दिया गया है इन दी कॉम्पिटिशन एक्ट,
this is based on the assets and turnover both at the enterprise as well as the group level and in India as well as worldwide. तो अगर 3 मार्क का क्वेश्चन हो तो आप यहाँ पे इसको एंड कर सकते हो. However, मैं अगर आंसर लिखूं तो मैं डेफिनेटली यहाँ पर ये टेबल बनाकर आऊंगा, बिकॉज ये टेबल काफी सारे स्टूडेंट्स छोड़ कर जाएंगे. तो आप एग्जामिनर को कन्विंस कर दोगे कि आप अच्छे से पढ़ के आए हो एंड यू विल बी एबल टू राइट इट वेल. सो आप यहाँ पे देखो, इसको याद रखना बहुत इजी है. आप सिर्फ एंटरप्राइज और एसेट्स को याद रख लेना. यहां से जब आप यहां जा रहे हो तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो इंटू 3, और यहां से यहां जब आप जाते हो तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो इंटू 4. जैसे कि 2000 दिस इंटू 3 दिस बिकम्स 6000, राइट. सेम वे अगर आप यहाँ पे देखो दिस 2000 हियर इट विल बिकम 8000 करोड़, राइट. दिस विल बिकम 8000 करोड़. जस्ट अ मिनट, यहाँ पे मैं करेक्ट कर देता हूँ. So this is your 8000 करोड़. ये 6000 this will become 24000 करोड़. an amount exceeding है. फिर ये जो 1 बिलियन है this will become US डॉलर 3 बिलियन, राइट. एंड ये जो 1000 करोड़ है this will become 3000 करोड़. फिर यहाँ पर ये जो 1 बिलियन है this will become US डॉलर 4 बिलियन, एंड ये जो 3 बिलियन है this will become US डॉलर 12 बिलियन. अब ये ध्यान रखना, ये जो रुपीज 1000 करोड़ है ये एज इट इज ही रहेगा 1000 करोड़, एंड दिस इज गोइंग टू बी 3000 करोड़. सो ये टेबल भी अगर आप बनाना चाहो तो इस टेबल को आप बना के आ सकते हो. और बाय द वे अगर 5 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में ये आपको वो पूछ भी सकता है. सो कॉम्बिनेशन आपको बताना है सेक्शन 5 के हिसाब से, प्लस उसके थ्रेशोल्ड लिमिट्स को भी. तो ध्यान रखना, ये एग्जाम के लिए अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज कल्यूसिव बिडिंग एंड इन व्हाट वेज द कल्यूसिव बिडिंग में अकर. तो कल्यूसिव बिडिंग के अंदर क्या रहेगा कि आप लोग एक साथ क्या करते हो, बिड्स को बेसिकली आप बिडिंग को, जो बिडिंग का पूरा प्रोसेस है उसको खराब करते हो. तो बहुत सारे लोग हैं जो एक साथ बिड करना चाहते हैं. एंड बिड क्यों करते हैं, क्योंकि आप चाहते हो कि आपको टेंडर मिल जाए, आप मोस्ट कॉम्पिटिटिव बिड अपना भेजोगे. लेकिन अगर आपको पता है कि ए बी सी डी ई ये 5 जने ही यहाँ पर बिड्स को सबमिट कर रहे हैं और ये आपस में डिसाइड कर ले कि कौन पहले किसका बिड अच्छा होगा, कौन जीतेगा. तो फर्स्ट अगर अग्रीमेंट हुआ तो ए यहाँ पर जीत जाएगा. सेकंड अग्रीमेंट में सेकंड मतलब फर्स्ट टाइम जब कोई यहाँ पे टेंडर आ रहा है तो उसमें ए को चांस मिल जाएगा. अगली बारी बी यहाँ पर चांस ले लेगा, अगली बार सी ले लेगा. या फिर टेरिटरी वाइज ये स्प्लिट कर दे कि नॉर्थ इंडिया का अगर कोई टेंडर है तो ए को मिल जाए, ईस्ट इंडिया का टेंडर है तो वो बी को मिल जाए. सो इस तरह से अगर ये अग्रीमेंट के अंदर एंटर कर जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कल्यूसिव बिडिंग. और ये किस तरीके से हो सकता है, अगेन 3 मार्क का क्वेश्चन है बट इट्स अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर फॉर 5 मार्क्स ऑल्सो. तो यहाँ पर बताया हुआ इन केस ऑफ बिडिंग टेंडर्स आर इन्वाइटेड, बिड्स आर इन्वाइटेड, बिडिंग और टेंडर्स के अंदर. और यहाँ पर जो बिड्स को मंगवाया जाता है वो इसलिए होता है ताकि आपको मोस्ट फेवरेबल टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर आपको बिड मिले और वो कॉन्ट्रैक्ट आपको मिले फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज. This also ensures the submission of the most competitive bids by the bidders to secure the tender, क्योंकि हर कोई चाहेगा कि उसको टेंडर यहाँ पर मिल जाए. अब कल्यूसिव बिडिंग के अंदर क्या हो जाएगा, कल्यूसिव बिडिंग इज कॉल्ड एज एंटी कॉम्पिटिटिव, क्योंकि वो इस पूरे पर्पस को क्या कर देता है, डिफीट कर देता है. सो कल्यूसिव बिडिंग इज एंटी कॉम्पिटिटिव बिकॉज इट एम्स टू डिफीट द वेरी पर्पस ऑफ द बिडिंग प्रोसेस, दैट इज टू गेट द मोस्ट फेवरेबल terms and conditions, the bids at the most favorable terms and conditions. Why? Because here the parties who are bidding or the bidders, they enter into an agreement and they agree to submit the identical bids. ये voluntarily अपने bids को inflate कर देते हैं. अब मुझे पता है कि मेरे को आपसे compete नहीं करना, तो अगर मेरे को जीतना है, हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, तो आप अपना बिड जबरदस्ती बढ़ा दोगे और मेरा बिड उससे सस्ता दिखेगा तो मेरे को टेंडर मिल जाएगा. एंड अगले बार कॉन्ट्रैक्ट में मैं उल्टा करूंगा, मैं अपने बिड को जबरदस्ती बढ़ा दूंगा ताकि कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल जाए. तो वॉलंटरली अगर आप बिड्स को यहाँ पे करते हो, नॉट टू बिड अगेंस्ट ईच अदर, राइट, स्क्वीज आउट द आउटसाइड बिडर्स एंड डिजाइन. बेसिकली इस तरह से आप करते हो, यू डेजिग्नेट द बिडर इन एडवांस ऑन अ रोटेशनल बेसिस, कि पहली बार मेरा, दूसरी बार आपका, थर्ड मेरा, फोर्थ आपका. इस तरह से अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो तो ये हो जाता है कल्यूसिव बिडिंग. बाय द वे कल्यूसिव बिडिंग इज ऑल्सो अ हॉरिजॉन्टल एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट. आप चाहो अपने आंसर में ये पॉइंट भी लिख के आ सकते हो. फिर आपके पास आता है व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अब्यूज ऑफ डोमिनेंस अंडर द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, क्रिटिकली एनालाइज द रेलेवेंट प्रोविजंस. अब आप देखो यहाँ पर आपको सेक्शन 4 आ जाता है. तो जैसे मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में भी बताया था, 3 ही सेक्शन है जो आपको ध्यान रखने हैं, मतलब 3 के साथ जो कलेक्टिव प्रोविजन है वो भी ध्यान रखना है. बट पूरा कॉम्पिटिशन एक्ट 3 चीजों के आसपास घूमता है. सेक्शन 3
एंटी कॉम्पिटेटिव अग्रीमेंट, सेक्शन 4 अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन एंड सेक्शन 5 इज योर कॉम्बिनेशन। सो यहाँ पर सेक्शन 4 है जो बेसिकली किसको बताता है, इट प्रोहिबिट्स द अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। अब अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन कब होता है और इससे क्या होता है? अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन अगर होगा तो जो फर्म्स के बीच में कंपटीशन होना है, फेयर कंपटीशन होना है, वो खत्म हो जाएगा। इट विल मेक difficult for the other players to compete within the dominant position with this particular dominant position। और सेक्शन 19 सबसेक्शन 4 जो है वो पूरा लिस्ट बताता है कि what constitutes a dominant position या what are the factors that CCI will take into consideration to decide whether there is a dominant position or not। और आपको ये भी पॉइंट ध्यान रखना है, अब्यूज ऑफ डोमिनेंस के लिए स्टेप 1 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर डोमिनेंस हो। अगर कोई डोमिनेंट पोजीशन पे ही नहीं है तो अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन का बात ही नहीं होगा। एवरेज लॉट ऑफ ऑर्डर्स ऑन द कंपटीशन एक्ट, और हर जगह एक ही पॉइंट आया सेक्शन 4 के अंदर, जहां पर स्टेप 1 क्या बोला गया है, फर्स्ट एस्टैब्लिश वेदर देयर इज अ डोमिनेंस और नॉट। और जितने भी ऑर्डर्स सेट असाइड होते हैं सेक्शन 4 के अंदर, जो पिटिशंस फाइल होते हैं, उसमें एक चीज कॉमन होता है, वहां पर जो अदर पार्टी है वो ये they fail to establish that there is a dominance। if there is no dominance there can be no abuse of dominance। so step 1 आपको यहाँ पर पहले dominance को प्रूव करना होगा। अगर आपने इसको प्रूव किया तभी हम स्टेप 2 पे जाएंगे, जब हम बोलेंगे now let's check abuse of dominant position is there or not। so what constitutes as abuse of dominance? तो आप यहाँ पे देखो, जब आप impose कर देते हो unfair conditions and price, प्रीडेटरी प्राइसिंग करते हो, मतलब कॉस्ट प्राइस से जबरदस्ती प्राइसिंग को आप नीचे इसको सेल ऑफ करते हो, आप प्रोडक्शंस को लिमिट करते हो, अगेन यू क्रिएट आर्टिफिशियल स्केर्सिटी सो दैट लोगों के बीच में डिमांड आप जबरदस्ती क्रिएट कर दो, आपका सप्लाई कम हो जाए, डिमांड आप ज्यादा बढ़ा दो और उसके बाद में इक्विलिब्रियम प्राइस आप बढ़ाओ। You create barriers to the entry, you deny the market access and then you apply dissimilar conditions to the similar transaction। तो एक ही जैसा ट्रांजैक्शन है, ऑब्वियसली उसका ट्रीटमेंट भी एक जैसा होना चाहिए। मतलब जो आप कंडीशंस एक ट्रांजैक्शन में लगाते हो while transacting with one person, इन इफ द ट्रांजैक्शन इज सेम, तो उसके साथ भी आपको वही कंडीशंस लगना चाहिए। जैसे आप एक एग्जांपल लो, आपको पता चले कि एक स्टूडेंट को अनअकैडमी ने ज्यादा डिस्काउंट दे दिया और दूसरे स्टूडेंट को थोड़ा कम डिस्काउंट दिया या आपको डिस्काउंट ही नहीं दिया, सो यू विल फील एजिटेटेड कि यार ऐसा क्यों, हम दोनों ने सेम सब्सक्रिप्शन परचेज किया था और ऐसा भी नहीं था कि जब मैंने परचेज किया तो कोई ऑफर नहीं था और किसी ने परचेज किया ऑफर था। जैसे अनअकैडमी पे कई बार ऑफर आता है, जैसे न्यू ईयर के टाइम पे ऑफर था, 26 जनवरी पे ऑफर था, 31st एंड 2nd फेब को यहाँ पर ऑफर था। सो उस टाइम की बात अलग है, बट आज जैसे कोई ऑफर नहीं है, बाय द वे इफ यू यूज माय कोड CSAK तो आपको मिल जाएगा। बट एग्जाम्पल आपको मैं दे रहा हूँ कि सपोज करो CSAK कोड यूज करके किसी को 20% डिस्काउंट मिलता है, किसी को 40 मिलता है, किसी को 10 मिल रहा है, किसी को डिस्काउंट ही नहीं मिलता, तो आप क्या बोलोगे, ये अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन है, बिकॉज यू आर अप्लाइंग डिसिमिलर कंडीशंस टू द सिमिलर ट्रांजैक्शन। फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4A, जिसके अंदर 5 मार्क्स के लिए आपको पूछा गया था बेसिकली सेक्शन 19 सबसेक्शन 4, जिसका मैंने यहाँ पे सिर्फ रेलेवेंस यहाँ पर आपको दिया था कि अब्यूज ऑफ डोमिनेंस, बेसिकली डोमिनेंस को पता करने के लिए सेक्शन 19 सबसेक्शन 4 के कंडीशंस को टेस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर भी वही आ गया कि व्हाट फैक्टर्स द Competition Commission of India will take into account to determine whether there is a dominant position or not। ध्यान रखना, section 19 subsection 4 doesn't talk about abuse of dominant position, all it mentions is dominant position। अब आप इसमें देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहला आता है हाई मार्केट शेयर, बेसिकली मार्केट शेयर। तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी एंटरप्राइज का हाई मार्केट शेयर है, ठीक है, विच इज कंसिस्टेंटली आपको दिख रहा है कि उसका हाई मार्केट शेयर है, तो ये डिटरमाइन कर सकता है कि इस पर्टिकुलर एंटरप्राइज का मार्केट में क्या है, डोमिनेंस है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, कभी किसी का मार्केट शेयर बढ़ जाता है, फिर कभी किसी का बन जाता है, फ्रीक्वेंट चेंजेस वहां पर अगर होते रहते हैं इन द मार्केट शेयर, तो हम फिर क्या बोलेंगे, किसी का भी डोमिनेंस नहीं है। देन साइज एंड रिसोर्सेज ऑफ द एंटरप्राइज, तो इसके अंदर आप देख लो फाइनेंशियल, टेक्निकल, राइट, इट कैन बी एनीथिंग, ह्यूमन रिसोर्स, राइट, किसी भी तरीके का आपका ब्रांड। तो अगर आपके एक ऑर्गेनाइजेशन का रिसोर्सेज दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, दैट यस द साइज ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ दिस एंटरप्राइज it aims at or it basically gives signifies that there is a dominance by this particular enterprise। जैसे आज की डेट में रिलायंस अगर किसी बिजनेस के अंदर एंटर कर जाए, तो जस्ट बाय द साइज ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द रिलायंस इंडस्ट्री यू कैन से दैट रिलायंस डोमिनेंस पोजीशन पे है यहाँ पे, बिकॉज उनके पास रिसोर्सेज जो है वो सुपीरियर है।
फिर आप देखिए साइज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉम्पिटिटर्स। तो आज की डेट में अगर आप देखो, ओला अगर बदतमीजी करे तो आप उबर के पास जा सकते हो, उबर बदतमीजी करे आप ओला के पास जा सकते हो। तो यू हैव a strong competitor there. Same way Vodafone, Idea and Jio, Vodafone, Airtel and Jio। तो एयरटेल और जियो को अगर आप चेक करो तो उन दोनों में से किसी को भी नहीं हम बोल सकते वो डोमिनेंट पोजीशन पे। हाँ, कलेक्टिवली दोनों को देखो तो वो डोमिनेंट पोजीशन पे है, बट दोनों स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स है एक दूसरे के लिए। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे कि दोनों का ही डोमिनेंट पोजीशन वहां पर नहीं है। फिर आता है इफ यू हैव इकोनॉमिक पावर or the enterprise of or the commercial advantage of one over the other, so in that case यहाँ पर क्या बोला जाएगा, dominant position है। जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और MCX DX के अंदर यहाँ पर बोला गया था कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पास पैन इंडिया प्रेजेंस है, दे हैव गॉट अ ब्रांड, दे हैव गॉट अ कमर्शियल एडवांटेज, क्योंकि ये इक्विटी सेगमेंट में ऑलरेडी सेटअप था। तो MCDX जो है, MCX DX जो है, ये कमोडिटी एक्सचेंज में नया एंटर किया था। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की एंट्री इन द MC कमोडिटी एक्सचेंज वेयर दे वर सेइंग दैट हम जीरो ब्रोकरेज के साथ काम करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ गया था कि इकोनॉमिक पावर है उनके पास ब्रांड है, एंड दिस वाज बेसिकली अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। फिर आप देखिए वर्टिकल इंटीग्रेशन ऑफ द एंटरप्राइज। तो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, रबर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, देन वहां से टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और वहां से फिर ऑटोमोबाइल कंपनी। तो जो वर्टिकल अग्रीमेंट हमने सेक्शन 3 के अंदर देखा था, तो अगर वैसे अग्रीमेंट्स आपके पास है तो इन दैट केस हम क्या बोलेंगे, आपके पास डोमिनेंस है, क्योंकि आप देखो सप्लाई चेन के अंदर आपका काफी अच्छा कमांड है। देन इफ यू हैव हाई डिपेंडेंस ऑफ द कंज्यूमर ऑन द एंटरप्राइज, तो कंज्यूमर्स के पास ऑप्शन ही नहीं है, घुमा फिरा के इन्हीं के पास जाना है, तो डेफिनेटली आपके पास क्या है, डोमिनेंस है। तो अगर हाई डिपेंडेंसी है तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, देयर इज अ डोमिनेंस। फिर आता है मोनोपोली या फिर डोमिनेंट पोजीशन बाय द वर्च्यू ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। तो क्योंकि आप एक गवर्नमेंट कंपनी हो तो हो सकता है इसकी वजह से भी आपको डोमिनेंट पोजीशन मिल जाए, डोमिनेंस आपका हो, स्पेशली इफ इट इज अ गवर्नमेंट टेंडर और लेट्स से एनी ट्रांजैक्शन पर गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व, तो गवर्नमेंट कंपनी को वहां पर थोड़ा सा फेवर मिल सकता है। सो यू कैन से दैट इन पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन द गवर्नमेंट कंपनी इज हैविंग अ डोमिनेंस जस्ट बिकॉज इट्स अ गवर्नमेंट कंपनी, इट्स अ PSU। फिर अगर आप देखो हाई एंट्री बैरियर, तो अगर बहुत ज्यादा एंट्री बैरियर है तो डोमिनेंस बहुत ज्यादा होगा। अब हाई एंट्री बैरियर दो तरीके से हो सकता है, बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द बिजनेस। ओके, नेचर ऑफ द बिजनेस जैसे कि टेलीकॉम हो गया, एविएशन सेक्टर हो गया, इनका बिजनेस का नेचर ही ऐसा है कि यहाँ पर हाई एंट्री बैरियर होगा। लेकिन अगर आप चेक करो, इफ यू सी लेट्स से कई ऐसे बिजनेसेस होते हैं जहां पर वो जो एग्जिस्टिंग मार्केट प्लेयर्स है वो एंट्री करने से मना कर रहे हैं, उन्होंने अपना कार्टेल बना के रखा है, मोनोपोली करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से वो नए प्लेयर को एंटर नहीं करने देते। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, हाई एंट्री बैरियर, एंड दिस देन देयर इज अ डोमिनेंस। इफ देयर इज हाई एंट्री बैरियर देयर इज अ डोमिनेंस। काउंटरवेलिंग बाइंग पावर, सो इफ ओला प्राइसेस को बढ़ा देता है तो यहाँ पर हम उबर के पास चले जाते हैं, उबर अगर बढ़ा देता है तो हम ओला के पास चले जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर काउंटरवेलिंग बाइंग पावर ऑफ द कस्टमर्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो आपको ये भी यहाँ पर चेक करना होगा, इससे भी पता चलेगा कि क्या डोमिनेंस है कि नहीं है। देन यू हैव द मार्केट स्ट्रक्चर एंड साइज ऑफ द मार्केट। तो मार्केट कैसा है, इट्स सेग्रीगेटेड, इट्स नॉट सेग्रीगेटेड, काफी सारे, इट्स वाइडली डिस्पर्स्ड, राइट, इट्स वाइडली डिस्बर्स्ड। तो अकॉर्डिंगली वहां पर डोमिनेंस कम होगा किसी भी पार्टी का। लेकिन अगर क्लोजली हेल्ड है तो फिर वहां पर क्या हो जाएगा, डोमिनेंस आपके पास ज्यादा होगा, राइट। तो आप देखना ये सारे आपके कुछ फैक्टर्स हैं। एग्जाम में सर आपको क्या, सर हमें 5 मार्क के लिए सारे अंदर का मसाला लिखना है, आंसर इज नॉट। जो ब्लू कलर से मैंने यहाँ पे लिखा है वो तो लिखना मैंडेटरी है। इसके अंदर अगर आप 1 लाइन 2 लाइन के अंदर भी कुछ कुछ पॉइंट्स को एक्सप्लेन करके आ जाओ तो भी आपको डेफिनेटली यहाँ पर 5 में से 5 आपको मिल जाएगा, और एटलीस्ट वर्स्ट केस सिनेरियो 4 on 5 तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4 भी, जो कि डील करता है कंपटीशन पॉलिसी से। सो द बेसिक पर्पस ऑफ द कंपटीशन पॉलिसी एंड लॉ इज टू प्रिजर्व एंड प्रमोट द कंपटीशन एज अ मींस ऑफ एंश्योरिंग एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमी। तो अगर आपने इस क्वेश्चन को नोटिस किया तो ये कोई पर्टिकुलर सेक्शन को डील नहीं करता, ये डील करता है आपके अंडरस्टैंडिंग को ऑफ द कंपटीशन लॉ। एनालिटिकल क्वेश्चन है, राइट। तो इसमें कोई सही गलत आंसर नहीं है, हालांकि हाँ इसमें सही पार्ट है कि कंपटीशन लॉ का आपको बताना है कि कैसे वो कंपटीशन को प्रमोट करता है और इंश्योर करता है कि एफिशिएंट एलोकेशन है। बट इसमें कोई वैसा करेक्ट आंसर नहीं है कि आप ये लाइन लिखोगे तो ही आपको मार्क्स मिलेगा। इट्स अ प्रॉपर एनालिटिकल क्वेश्चन एंड इट टेस्ट्स यू हाउ स्ट्रॉन्ग यू हैव अंडरस्टूड द कंपटीशन लॉ एंड द कंपटीशन पॉलिसी। तो यहाँ पर जैसे बताया कि तो बेसिकली क्योंकि 5 मार्क का क्वेश्चन था, मैंने इसको कैसे डिफाइन किया, मैंने सबसे पहले यहाँ पे कंपटीशन को डिफाइन कर दिया दैट कंपटीशन इज अ प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक राइवलरी बिटवीन द मार्केट प्लेयर्स टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स। अब कंपटीशन की वजह से क्या होता है,
आपको बेस्ट कॉम्पिटिटिव प्राइस पे प्रोडक्ट्स वगैरह मिलते हैं। और प्रोड्यूसर्स को भी एक क्या होता है, इंसेंटिव होता है कि हम इनोवेट करते हैं, हम अच्छे तरीके से यहाँ पे कॉम्पीट करते हैं दूसरे पार्टनर के साथ या जो दूसरे प्लेयर्स हैं उनके साथ, सो दैट वी गेट द मैक्सिमम मार्केट शेयर, हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स हमारे पास आए। अब ये कंपटीशन को आप क्या कर सकते हो बीट करने के लिए, यू कैन अडॉप्ट फेयर मीन्स और यू कैन ऑल्सो इंडल्ज इन द अनफेयर मीन्स। तो कंपटीशन लॉ क्यों जरूरी है, ताकि ये अनफेयर मीन्स को टैप कर सके। ठीक है, तो आप ये देखो, हेंस कंपटीशन लॉ एम्स एट द फॉलोइंग, वन इज to preserve, protect and promote the competition, and second is to prevent the anti-competitive business practices with minimum government intervention। और healthy competition जो रहेगा उसके लिए आपको क्या चाहिए, you need two things, one is the healthy market condition and second is appropriate government regulations to promote the competition। तो ये अगर आपके पास आ जाता है तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ पर कंपटीशन जो कंपटीशन पॉलिसी है इस पर्टिकुलर कंट्री का, दैट इज गुड। सो दिस इज द बेसिक पर्पस ऑफ द कंपटीशन पॉलिसी एंड कंपटीशन लॉ। नाउ अंडरस्टैंड देयर आर टू थिंग्स, कंपटीशन पॉलिसी इज बेसिकली व्हाट इज द आउटलुक ऑफ द गवर्नमेंट देयर, व्हाट इज द अप्रोच ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स द कंपटीशन लॉ, एंड कंपटीशन लॉ इज बेसिकली वो वहां का कानून, इट्स द एक्ट देयर। तो ये आपको पॉइंट यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आपने अगर नोटिस किया हो, इंट्रोडक्शन से लेके सेक्शन नंबर 3, सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 5 सब आपको डिटेल में पूछा गया। और कंपटीशन जो लॉ है ये इतना इजी है कि इसमें 25 में से आपको 20 स्कोर करना इज नॉट डिफिकल्ट। अब आप सोचो, अगर आपने 25 में से 20 स्कोर कर लिया, बैलेंस 75 के पेपर से आपको सिर्फ 30 लेके आना है एग्रीगेट के लिए, 20 लेकर आना है पास होने के लिए, 30 लेकर आना है एग्रीगेट के लिए, और थोड़ा सा और अच्छे से अगर आप प्रिपेयर कर लो एंड यू गेट 40, तो आप चेक करो यहाँ पर आपका स्कोर 60 के पास आ गया, दैट इज योर एग्जामिनेशन स्कोर। तो कंपटीशन लॉ इज नॉट वेरी डिफिकल्ट एंड इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बूस्ट योर स्कोर इन योर EBCL पेपर। और अगर आप EBCL मेरे से पढ़ना चाहते हो तो आप यहाँ पे मेरे को फॉलो कर सकते हो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, दिस इज द लिंक विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इस लिंक को फॉलो करके आपको मेरे अनअकैडमी पे जो फ्री लेक्चर्स है वो उसका भी एक्सेस मिल जाएगा, प्लस यू विल ऑल्सो गेट एक्सेस टू द पेड लेक्चर्स। ऑफ कोर्स दिस इज आफ्टर यू बाय द सब्सक्रिप्शन, बट ये आपको सिर्फ क्या करना है, अनलॉक करना है अनअकैडमी के लर्नर्स ऐप पे यूजिंग द कोड CSAK। ऐप आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। दिस इज फॉर द एंड्रॉइड यूजर्स एंड दिस इज फॉर द iOS यूजर्स। आप अनअकैडमी के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, सो दैट यू गेट अपडेटेड विद ऑल द वीडियोस विच द डिफरेंट एडुकेटर्स दे मेक, एंड और भी कुछ जो नोट्स वगैरह अगर शेयर करते हैं टेलीग्राम चैनल पे तो वो आपको मिल जाएगा। Do subscribe this channel and press the bell icon to stay updated with all the videos which are being made, and you can purchase the subscriptions by clicking here for module 1 or for module 2। ऑल्सो जब आप अनअकैडमी पे मेरे को यहाँ पर फॉलो करोगे, राइट, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा सा पेज दिखेगा, यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और अगर आप ये लॉगिन वाले बटन के ऊपर प्रेस करोगे तो लॉगिन वाले बटन पे प्रेस करने के बाद आपको कुछ इस तरह से मेरे वीडियोस दिखेंगे। यहाँ पर जो आता है चूज द गोल, सो यू कैन सिलेक्ट एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 और बोथ इन केस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बोथ। अब ये वो फ्री लेक्चर्स है जो मैंने आपको बताया था अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को मिलेंगे। तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर यहाँ पे मैंने वीडियो बनाया है, दिस यू कैन डेफिनेटली वॉच इट। बाय द वे कंपटीशन लॉ का अगर एंटायर ओवरव्यू आपको चाहिए तो आप ये वीडियो को डेफिनेटली देख सकते हो। अगर आप मेरे को इसको यहाँ पर फॉलो करो, एंड ऑल्सो जब आप सब्सक्रिप्शंस परचेज करने के लिए जाओगे तो कुछ आपको इस तरीके का पेज मिलेगा वेर यू कैन परचेज सब्सक्रिप्शंस फॉर 3 months, 6 months, 12 months एंड 24 months डिपेंडिंग अपॉन योर प्रिपरेशन। सो लेट्स से अगर आप अभी जून में एग्जाम दे रहे हो तो आप ये 6 months का सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हो, और अगर आप दिसंबर में एग्जाम दे रहे हो तो आप ये 12 months का सब्सक्रिप्शन पे कर सकते हो। बट जब आप सब्सक्रिप्शन अवेल करने के लिए जाओ, डोंट पे दिस पर्टिकुलर प्राइस। यहाँ पर आपको जो रेफरल कोड है यूज माई कोड CSAK, और जैसे ही आप CSAK कोड यूज करोगे यू सी प्राइसेस आर गोइंग टू फॉल, राइट, एंड यू कैन सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी, आपका और आपके पेरेंट्स का हार्ड अर्न्ड मनी, राइट। प्लस सब्सक्रिप्शन को लेने का क्या फायदा होता है, विद 1 सब्सक्रिप्शन यू गेट अनलिमिटेड एक्सेस। जैसे आप ये चेक करो, अगर आप 11,813 रुपीज पे करते हो या 17,325 रुपीज पे करते हो फॉर 12 months, तो आपको सिर्फ इकोनॉमिक, बिजनेस, कॉमर्शियल लॉ के लेक्चर्स नहीं मिलेंगे, मॉड्यूल 2 के सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, राइट। एंड नॉट जस्ट बाय मी, ऑल द एडुकेटर्स हु आर टीचिंग मॉड्यूल 2 इन दी CS एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 2 प्लेटफॉर्म एट दी अनअकैडमी, आपको उन सब के लेक्चर्स मिलेंगे। इन सब लेक्चर्स को आप क्या कर सकते हो, अनलिमिटेड टाइम्स यूज कर सकते हो जब तक आपका ये सब्सक्रिप्शन पीरियड है।
रियल टाइम इंटरेक्शन होता है एडुकेटर्स के साथ। आप जैसे यूट्यूब पे अगर मुझसे कुछ डाउट पूछना चाहो तो आपको टाइप करना पड़ता है, मैं भी आपको यहाँ पे रिप्लाई करता हूँ, और वो इतना इफेक्टिव नहीं होता जितना इफेक्टिव अगर हम आपस में बात करके करें। तो रियल टाइम इंटरेक्शन हो सकता है, आप और मैं जैसे हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात करते हैं वैसे बात कर सकते हैं। यू कैन आस्क योर डाउट्स इन योर लाइव क्लास। लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, इन वीडियोस को आप डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो क्लियर योर डाउट्स थ्रू अ डेडिकेटेड डाउट सेशन। तो अगर आपको एडमिशन लेना है ऑन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म फॉर मॉड्यूल 2, तो आपको कुछ नहीं करना है, ऑल यू हैव टू डू इज यूज द कोड CSAK। CSAK कोड यूज करने से आपको 2 बेनिफिट होगा। वन, यू आर गोइंग टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन योर फीस, प्लस यू विल ऑल्सो गेट माई मेंटोरशिप। आपको यहाँ पर मेरा मेंटोरशिप भी मिलेगा फॉर योर CS प्रिपरेशन। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको ऑलरेडी बताया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहां पर आपको फ्यूचर में भी जो वीडियोस बनेंगे, जो मेरे थ्रू या फिर जो बाकी एडुकेटर्स जो CS प्लेटफॉर्म पे आपको पढ़ा रहे हैं, उन सब का वीडियोस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो, बिकॉज आप जब इस वीडियो को लाइक करते हो तो आप अनअकैडमी के चैनल के थ्रू आप यूट्यूब को ये बता रहे हो दैट ये वीडियो अच्छा है, इसको और लोगों तक पहुंचाओ, और इससे काफी लोगों को फायदा होगा। तो अगर आपको जेन्युइनली लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था और बाकी लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है, प्रेस द बेल आइकन एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर अदर फ्रेंड्स। मैं आपको अगले किसी PYQ सेशन पे मिलूंगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।